Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है. I just called the cops. परेशान होके मैंने पुलिस को कॉल किया. पुलिस आई. And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है. मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ. मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है. I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please, someone help me. I know, but we can't. We've tried. Breathe, buddy, okay? Breathe. He's Okay. doing pretty good. Okay. Okay, he's got a big jack now. Okay. He's not bleeding, though. He's not bleeding. It's making a kill. No. Okay, just back it up. Here. Just try to breathe, okay, buddy? Breathe. Keep going. Keep going. Keep going. You want me to? You need me to do it? No. Okay. Breathing. Keep breathing, buddy. Just breathe. Do not pull your leg out. Breathe, okay? Breathe. 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 Don't stand on it. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. No, you don't need a tourniquet. You don't need a tourniquet. Okay, we don't. Okay, that's what she told me on the Show phone. one. We got him out. Breathe. Breathe. Okay. 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 How old are you? I'm 10. What's your name? Okay. What do you like to do? Legos. Legos? Do you play any sports? The shack is not Here. secure. Turn the lawnmower off, please. Okay. Watch out. Sorry. You're good. We are. I'm gonna pick you up. Okay, just a second. I will help her. Take my vest. No, no, you do not in any way. We're gonna pick you completely up. You're not gonna be anywhere. Shack is not secure. Wait for the trailer. Okay, just a second. I will help her. Watch your No, foot. no, you do not in any way. We're gonna pick you completely up. You're not gonna be anywhere. Is this one way to me? Are you okay? You want them on mine or yours? Open the back. The very back, unless you got a bunch of stuff. I don't. Here, the very, very back. You're gonna be okay. You're gonna be fine. You're doing great. You're so brave. You're doing fine. Okay. Give me the water. Can you Negative water. scoot back a little bit? Yeah. Can you scoot you back a little bit? Okay. Okay. You're not. Breathe. You're okay. Breathe. Breathe. You're at very me. tough and brave. Okay? You're okay. Breathe. Do you have any ice packs in your go bag by chance? So no. Have any ice Lay my packs? phone down. Get some ice packs. I don't know. You're okay. Breathe. Okay? I need something. I know. We're That's getting it, getting some okay? ice, okay? Can you wiggle your toes? I Good. Yeah, great. apple. It's okay. I know it hurts. Okay. Here, hug me if you need to. Squeeze me. I got it. Hey, I got it. Glendale 911, where is your emergency? Hi, I'm calling because the dog is in the canal here on Camelback and 75th, and he's unable to come out. It's the canal that's right next to the park on 75th and How deep is it, you know? Camelback. No idea. Okay. Oh my God. And what kind of dog is it? He's white. He's like the furry one. You want the He's leash or not? standing, but he's unable to. Come on, You want doggy, the come on. leash? He's unable to pull up. Oh my God. Is there another I ladder over mean, there, bro? he's trying to come up, but he's unable. I don't know how to go down. Okay, and I'm assuming it has water in it. Yes, the canal, yes. Is it like a large dog or a small dog? It's like a medium, small dog. It's like a furry white dog? Yes. Sorry, I'm just trying to tell the officers where you are.
You gonna send it or what? It's crazy, bro. Top of the year right here. Send it if you want, but don't die with it. Where's Hey, give me a lasso. Hey, if you guys hold that thing, I'll swim to her. But just hold me with that pole. I got it. Hey, I got it. All the programs, Minot State University, thank you. All right, here she comes, the venerable B-52 Stratofortress, flown by America's best, America's honorable, the 69th Bomb Squadron, Night Bombs, led by Colonel Sheriff Burrell. Welcome, the B-52 Stratofortress! Thank you. All right, here she comes, the venerable B-52 Stratofortress. When he pulled me over, he walked up, opened my door because my window don't work, right? Okay. And then I said, so what I did wrong? Yeah. He said, well, for one, your headlights are off under this weather. I'm like, okay. There's multiple people headlights off, first of all, and then there's no rain. It doesn't matter. You're still required to have headlights on. Can you pull that law up? Huh? Can you pull that law up? Yeah, when you step out of the car, I will. Can you call your supervisor? Huh? Can you call your supervisor? All right, go for it. Exit the vehicle now. Exit the vehicle. Show me your hands. Here. I'm here. What is your reason, sir? Step out. What is your reason? Step out now. All right. Get on the ground. No, don't. Get on the ground. Stop fighting. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Hands behind your back. What's wrong with you? Ain't no talking now, man. Ain't no talking. Fucking talking shit, bro. I was doing it, bro. What's going on, man? You're under arrest. That's what's going on. No, bro. Yes, bro. Yes. You have a lawful reason, bro. Big Knife Center right here, too. You gonna throw me phone like that, bro? Yeah, I'm gonna take it off of you, bro. Yeah. And I'm just trying to have a regular conversation with y'all, bro. That's not how it works. Too late. It ain't no too late. When they asked you to step out of the vehicle, you should have done that shit. Sir, your partner didn't even ask. Marijuana in his right pocket. Yes, it is. So why close the door if you see him pull up? Because, man, what you mean? He talking about arresting me and stuff, bro. I didn't do nothing. It's called resisting, idiot. I didn't do nothing wrong, sir. Can you back me up to the car so I can lean up? Shut up. You was bugging my shit, bro.
not normal, it's consumer. Hello? Yeah. They were not supposed to. Abhilash, Mojo connect ചെയ്യ്. Mojo on ആണോ? Mojo is on, just check if it is there. Roll on my card, please roll on the card number. कॅमेराची बॅट होती मध्ये हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हर मंच से यह कहा है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रहा है और बिहार में हमारी पार्टी का यह मत है कि बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता अब तैयार हैं। मगर इस बात का जो आशीर्वाद है, इस बात का जो आगाज है, वो बिहार की जनता से भी मिलना चाहिए और इसके लिए हम अपने अभिभावकों के पास प्रमंडलीय स्तर पर हर जगह जा रहे हैं। इसकी श्रृंखला हम लोगों ने शाहाबाद आरा से शुरू की थी। वहाँ हमारे नेता ने
अपनी बात को बताया, अपनी विचारधारा को रखा, विकसित बिहार बनाने के अपने विजन को जनता के सामने रखा, सबसे आशीर्वाद लिया। और उस कड़ी में उसके बाद हम लोग राजगीर गए, वहां भी जनता का बहुत आशीर्वाद मिला। छपरा गए, इसके बाद मुंगेर में बहुत बड़ी सभा हुई, जहां फिर उन्हें जनता से आशीर्वाद मिला। इसी श्रृंखला में आज हम गया जी की पावन भूमि पर हैं। गया जी की पावन भूमि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसी धरती से आने वाले समय में बिहार की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा कैसे तय होगी, इस बात को लेकर के भी हमारे नेता अपनी बात को, अपनी विचारधारा को, अपने विजन को रखेंगे। और गया जी की धरती से, यहाँ की जनता से अपने अभिभावकों से आशीर्वाद लेकर के वो आगे श्रृंखला में चले जाएंगे। उत्तर बिहार में लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए मैं एक बात और आगे बढ़ करके कहना चाहूँगा कि भले हमारे नेता में अनुभव की कमी है, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि गया जी की धरती की जो जनता है उनके आशीर्वाद में कहीं से कमी नहीं होगी। और हमारे नेता का जो सेवा भाव है, जो पूरे बिहार के लिए है, गया जी की धरती के लिए है, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। मेरा नाम संजय है। हमें मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। He has come here for a very important job and we wish him a good luck and we wish Bharat a good luck. I think he is doing a great job and we are very proud of our nation. भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा लोगों को मारा है। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें, बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि फर्जी वोट डलवाएं, जो वोटर है उसका वोट काटा जाए। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज्यादा वोटिंग हो। देखिए, कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का। तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है कि कौन से लोग ने क्या डॉक्यूमेंट किया है, कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा पेंशन ख़त्म हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये संकट जो है आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सूत्र से सवाल, सूत्रों से जो प्लांट न्यूज़ करा रहे थे या सूत्रों की जो खबर थी कि भाई विदेशी आ गए हैं वोटर, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का। उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स, विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं।
तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर्स जो है वो सरकार चुनती थी, वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जा रहा है। SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पे भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास BLO पे, BLO अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, मेरे भी BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप BLO के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें। और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। मित्रों, इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल थे, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले
और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा, ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता। ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आप देखते जाइए, नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार को। सारा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर। कि यहाँ पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का, अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया। पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है, तो आधार है किस बात के लिए? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना, ये एक षड्यंत्र के तहत वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा। लगातार SIR की मांग को लेकर कि सरकार गलत कर रही है, वोट चोरी कर रही है। Whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर। मुद्दा उठाया जा रहा है संसद में और संसद चल नहीं पा रहा है। आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ, लगातार ये कहा जा रहा है, सरकार पर आरोप लग रहा है कि वोटों की चोरी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन सरकार का साथ दे रहा है, आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिहार भी गया था अभी 2 दिन पहले। अगर कोई भी विषय आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। भाई ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है। मैंने भी खुद सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए हैं, उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी का स्टैंड कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच। समाजवादी पार्टी जो है वो मस्जिद में बैठक कर रही है जो पार्लियामेंट के बाहर है, इसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ, और जो नियम जो पालन होते हैं जैसे रिलीजियस प्लेस है उसका पालन नहीं किया गया। देखिए, ये उनकी पार्टी का, इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं, वो तो वहीं से जो बड़े बड़े भाषण देते हैं। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पर चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहा है। देखिए, बिहार का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग डोर टू डोर अगर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है तो जो वोटर 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं हो, वोट बनाया जा रहा है। जिनकी डेथ हो गई उनके नाम डिलीट हो गए, कोई एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया उसके नाम डिलीट हो गए। लेकिन अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, विदेशी है, तो उसको डोर टू डोर वेरीफाई करके उनके नाम काटे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और गरीब लोग 11 डॉक्यूमेंट लेकर के कैसे आएंगे बिहार में? देखिए, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मात्र
इतनी बात है कि वोटर जो फर्जी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं। इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी भी प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किल, उससे ज्यादा, मगर एक उनका पहले से आधार कार्ड या वोटर आईडी है तो मुश्किल से 2 और मांगे जाते हो। किस गांव में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, कब से रहते हैं। इतनी बात देने पे इतना हंगामा हो रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये लोग फर्जी वोटरों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और चुनाव आयोग सही दिशा में कदम उठा रहा है। மாநிலங்கள் அவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் கமல் ஹாசன் எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழுமிய முறைமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். வணக்கம். पे चल रहा है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग हैं अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। मस्जिद में आप गए तो उसको लेकर भी सवाल। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हर मंच से यह कहा है कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार उन्हें बुला रहा है और बिहार में
हमारी पार्टी का यह मत है कि बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता अब तैयार हैं। मगर इस बात का जो आशीर्वाद है, इस बात का जो आगाज है, वो बिहार की जनता से भी मिलना चाहिए। और इसके लिए हम अपने अभिभावकों के पास प्रमंडलीय स्तर पर हर जगह जा रहे हैं। इसकी श्रृंखला हम लोगों ने शाहाबाद आरा से शुरू की थी। वहाँ हमारे नेता ने अपनी बात को बताया, अपनी विचारधारा को रखा, विकसित बिहार बनाने के अपने विजन को जनता के सामने रखा, सबसे आशीर्वाद लिया। और उस कड़ी में उसके बाद हम लोग राजगीर गए, वहाँ भी जनता का बहुत आशीर्वाद मिला। छपरा गए, इसके बाद मुंगेर में बहुत बड़ी सभा हुई, जहाँ फिर उन्हें जनता से आशीर्वाद मिला। इसी श्रृंखला में आज हम गया जी की पावन भूमि पर हैं। गया जी की पावन भूमि जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसी धरती से आने वाले समय में बिहार की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा कैसे तय होगी, इस बात को लेकर के भी हमारे नेता अपनी बात को, अपनी विचारधारा को, अपने विजन को रखेंगे। और गया जी की धरती से, यहाँ की जनता से अपने अभिभावकों से आशीर्वाद लेकर के वो आगे श्रृंखला में चले जाएंगे। उत्तर बिहार में लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए मैं एक बात और आगे बढ़ करके कहना चाहूँगा कि भले हमारे नेता में अनुभव की कमी है, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि गया जी की धरती की जो जनता है उनके आशीर्वाद में कहीं से कमी नहीं होगी। और हमारे नेता का जो सेवा भाव है, जो पूरे बिहार के लिए है, गया जी की धरती के लिए है, उसमें भी कोई कमी नहीं होगी। ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अजूम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते तय करने वाले? जो फर्जी वाला आप कौन होते? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए, बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपके हमारी सक्षम है, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, 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 बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए, 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 सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। संजय जी, संजय, रुको। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है।
SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पर भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास BLO पे, BLO अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, मेरे भी BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप BLO के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें। और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। मित्रों, इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे, प्राकृतिक आपदा पर सवाल थे, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता, ये जंग की शुरुआत है। अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आप देखते जाइए, नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर। कि यहाँ पर सब लोग ये बताने का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए घुसपैठिया थे, ये देखिए इलीगल वोटर्स थे, ये देखिए वोटर इन्फ्लेशन के वोटर्स को इन्फ्लेट करने का, अपनी तरफ करने का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी। पर दुख इस बात का है कि जो वैलिड वोटर्स हैं उनके ऊपर आपने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, वो डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नहीं पाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जाएंगे जजेस से, शायद उनमें से काफी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ना हो, इसलिए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सब का भी ऑप्शन दिया। पर कल इलेक्शन कमीशन ने उसको भी जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हो सकते हैं। अगर राशन कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड ना आपका सिटीजनशिप प्रूफ, ना एड्रेस प्रूफ, ना ये जो इंडिविजुअल प्रूफ होता है, कुछ नहीं है।
तो आधार है किस बात के लिए? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया है दिखा रहा है कि ये जिस मंशा से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतने सारे वोटर्स को डीलिस्ट करना ये एक षड्यंत्र के तहत वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने का इन्होंने षड्यंत्र रचा। लगातार एसआईआर की मांग को लेकर कि सरकार गलत कर रही है, वोट चोरी कर रही है। Whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए, और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारी सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर। मुद्दा उठाया जा रहा है संसद में और संसद चल नहीं पा रहा है। आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ, लगातार ये कहा जा रहा है, सरकार पर आरोप लग रहा है कि वोटों की चोरी की जा रही है, इलेक्शन कमीशन सरकार का साथ दे रहा है। आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिहार भी गया था अभी 2 दिन पहले। अगर कोई भी विषय आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को चर्चा करानी चाहिए। भाई, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशन पे चुनाव आयोग जो है, जो पूरा चुनाव कराता है, उस पर इतना बड़ा सवाल है। तो सवाल इसलिए भी जाहिर है क्योंकि जनता बोल रही है। मैंने भी खुद सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो मृतक हो गए उनके फार्म भरे जा रहे हैं। तो मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट है हमारी पार्टी का स्टैंड कि कहीं से भी वोट की चोरी ना हो, इसलिए इस पर चर्चा हो और इसकी जांच हो। समाजवादी पार्टी जो है वो मस्जिद में बैठक कर रही है जो पार्लियामेंट के बाहर है। इसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ, और जो नियम जो पालन होते हैं जैसे रिलीजियस प्लेस है उसका पालन नहीं किया गया। देखिए, ये उनकी पार्टी का, इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं, वो तो वहीं से जो बड़े बड़े भाषण देते हैं। देखिए, ये जानबूझ करके डेडलॉक बनाया जा रहा है। जब पहले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे सदन को बाधित किया, हंगामा किया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है स्पीकर साहब के साथ, 16 घंटे उस पर समय तय हो गया। अब स्पीकर साहब जिस दिन करेंगे चर्चा होगी। अगर इसके बाद और विषयों पर चाहते हैं तो कल भी मैं चेयर पे था, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आप कोई विषय लाइए। ये सदन के बिल में राहुल गांधी के सामने लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्ले कार्ड्स को, ये सदन के ऊपर लोकतंत्र पे कुठाराघात है, अमर्यादित आचरण है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी का, ये गलत है। राहुल गांधी सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, बिहार का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग डोर टू डोर अगर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहा है तो जो वोटर 18 साल के हो गए, अगर वोटर नहीं हो, वोट बनाया जा रहा है। जिनकी डेथ हो गई उनके नाम डिलीट हो गए, कोई एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया उसके नाम डिलीट हो गए। लेकिन अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाली है, विदेशी है तो उसको डोर टू डोर वेरीफाई करके उनके नाम काटे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और गरीब लोग 11 डॉक्यूमेंट लेकर के कैसे आएंगे बिहार में? देखिए, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। मात्र इतनी बात है कि वोटर जो फर्जी हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। इसमें सहयोग करने की जगह ये उसका विरोध कर रहे हैं। पूरा बिहार, पूरा देश का हर राज्य आज इसी बात से जूझ रहा है कि फर्जी वोटर्स बन गए हैं। इलीगल घुसपैठिए आए हैं देश में और वो वोटर बन गए। इलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी भी प्राप्त हो चुकी है। तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किल, उससे ज्यादा, मगर एक उनका पहले से आधार कार्ड या वोटर आईडी है तो मुश्किल से 2 और मांगे जाते हो। किस गांव में रहते हैं, किस कस्बे में रहते हैं, कब से रहते हैं। इतनी बात देने पे इतना हंगामा हो रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये लोग फर्जी वोटरों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और चुनाव आयोग सही दिशा में कदम उठा रहा है।